So just to give you an idea, you can make a vision board that looks like this. This is just to give you an example. आप ऐसे बना सकते हो. इसमें जैसे क्या क्या आपको having abundance, having money, having the kind of lifestyle you want, any particular person जिसके साथ आप relationship share करना चाहते हो, life share करना चाहते हो, या the kind of house you want to live in, the kind of job you want to do, the kind of places you want to travel. So what are the kind of experiences you want to have, what are the kind of feelings that you want to generate, and the kind of possessions that you want, all can be cohesively created with the law of attraction. Hey guys, this is Nerita, and today I'm going to be talking to you about something very important. It's about the law of attraction. So you can have anything that you want with the law of attraction. The law of attraction basically means similar energies are driven together. Similar energies attract similar energies. For example, if you're giving out good vibes, you get more of good vibes. And if you are focusing on negative, sad, bad things, then you get more of that. That's why it becomes very important to have a very deep understanding about what is the kind of thought that we are thinking and what is it that we are feeling. Because our feelings and emotions are basically vibrations, and these vibrations manifest the life that we live. So, in the future, the kind of life that you live, if you focus on that lifestyle, if you focus on what you want, you have a higher tendency to attract that. And if you focus on something, say, what you don't want, you still have the high potential to attract that. So, law of attraction उतना ही वैलिड है जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी ऊपर से ये हमने फेंका, ये नीचे गिर गया. जितना ये वैलिड है, ठीक उतना ही वैलिड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो हमारा रियलिटी बन जाता है. तो अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो, आपको वो मिलेगा. और उसी प्रकार अगर आप ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको वो भी मिल सकता है. तो you attract what you think of. So you should basically know what exactly you want. The energy, जो energy आप देंगे, the energy that you're giving out is the energy that you receive. Now, the law of attraction is very powerful. तो इसको यूटिलाइज करने के लिए कई सारे तरीके हैं जिसमें कि we can use the law of attraction. आप अपने रियलिटी को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हमारा जो माइंड है वो क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उस पर कंट्रोल लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज़फुल होता है वो है विजन बोर्ड. विजन बोर्ड एक बोर्ड या एक बुक होता है, like where you can like put up all the pictures, experiences, feelings that you want to generate and the experiences that you want to have or attract in your life. So if you bring it in a visual format and you stick it up in a board and then you see that every day, it trains your subconscious mind to start believing in them, and the brain tirelessly starts to work to create those realities for you. So when you have all those things put up and you are constantly watching it, so the brain starts to create those realities for you. So basically we कुछ पिक्चर्स डालते, जैसे हमने एक बोर्ड लिया, उसमें हमने ऐसे ऐसे पिक्चर्स लगाए जो हमें चाहिए. तो इट कैन बी एन एक्सपीरियंस. कहीं सपोज आपको कहीं पे जाना है, वो उस जगह का फोटो आपने लगाया. आपको किसी के साथ रिलेशनशिप चाहिए, उनका फोटो आपने लगाया. आपको लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, जिस भी फ्रंट में चाहिए, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. वेरी क्लियर माइंड सेट, मतलब एक बहुत ही क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक. क्योंकि इसका कौन पार्ट में जो है ना, अगर आप वेग भी पिक्चर्स लगा देते हो, कुछ भी रैंडम उठा के, तो आप वेग चीजें मैनिफेस्ट करते हो और वो क्लैरिटी के साथ नहीं हो पाता है. तो इस वजह से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसको आप थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, एंड गिव इट टू द यूनिवर्स एंड पुट इट अप ऑन अ विजन बोर्ड एंड सी इट एवरी डे. सो यू कैन हैव मल्टीपल विजन बोर्ड्स. आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए विजन बोर्ड हो सकता है, वर्क लाइफ के लिए दूसरा विजन बोर्ड हो सकता है जो आप अपने ऑफिस में लगा सकते हो, डिपेंडिंग. और या तो आप एक ही बड़े विजन बोर्ड में सब लगा सकते हो. बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप विजन बोर्ड को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ फिल ना कर दे, ताकि ब्रेन सबकॉन्शियसली समझ ही ना पाए कि आप क्या चाहिए. तो इन पिक्चर्स को आप गूगल से निकाल सकते हो, पिंटरेस्ट से निकाल सकते हो. तो एक क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या. इन पिक्चर्स को निकाले, एक बोर्ड में डाले, और फिर उसमें कुछ अफर्मेशंस लगा के अपने पिक्चर के साथ उसको पेस्ट कर दे, एंड देन you will start to manifest it. Now the law of attraction is always working in motion, so it's always working. It's a continuous process. Whatever you're thinking, it's manifesting it. So your reality is always being manifested with your thoughts. So आप क्या सोच रहे हो becomes very important. Suppose आप अपने mind में
जो आपके पास लाइफ में नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, या आप एक लैक माइंडसेट में रहते हो कि आपके पास पैसे की कमी है, कोई रिलेशनशिप है जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, बस उसी के बारे में जब कंटिन्यूअसली सोच रहे होते हो, वो आपको एक सैड इमोशन जनरेट कर रहा होता है माइंड में, और वही सैड इमोशंस एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट क्रिएट करता है, और वो वाइब्रेशन आपको मोर ऑफ दोज वाइब्रेशंस लाके देता है। मतलब कि आप जैसा फील कर रहे हो वो फीलिंग्स और इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस और फीलिंग्स वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। वाइब्रेशंस आप देख नहीं सकते, जैसे हम लाइट नहीं देख सकते, साउंड ट्रैवल वेव्स नहीं देख सकते, वैसे हम हमारे दिमाग से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो हम देख नहीं सकते। इस वजह से बट वो अट्रैक्ट करता है। तो जो आप मतलब फील करते हो, जैसे आप हैप्पी फील कर रहे हो और बहुत ही अमेजिंग फील कर रहे हो, जेन्युइनली उस स्पेस में हो, तो आप उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। और जब आप बहुत सैड फील कर रहे हो, उसके पीछे एक अंडरलाइंग थॉट होता है, और वो थॉट हो सकता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी या कुछ भी है, तो आप उसको और ज़्यादा क्रिएट करते हो, और फिर आपका लाइफ उसी थॉट मतलब वैसे ही आपका लाइफ बनेगा। तो अगर आपको सपोज यू गेट अ डायमंड रिंग, राइट? Suppose you get a lot of happiness from a diamond ring. So you have to feel how you feel when you get the diamond ring. तो अगर आपको एक पर्टिकुलर डायमंड रिंग चाहिए और आपने अपने मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे उस डायमंड रिंग को लगाया, तो लगाने के बाद आप उसको इंजॉय कर रहे हो, मतलब देख के आपको ऐसा लग रहा है वाह आई फील सो गुड, जो ये गुड फीलिंग आता है, उस गुड फीलिंग को यू कैन अट्रैक्ट। तो जितना आप गुड फीलिंग जनरेट करोगे उतना यू विल अट्रैक्ट गुड फीलिंग, जितना आप हैप्पी फील करोगे उतना हैप्पीनेस यू विल अट्रैक्ट, जितना आप एक्साइटेड फील करोगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन है ये। तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू फीलिंग, द क्रक्स ऑफ दिस थिंग इज द फीलिंग। सो आई हैव वर्क विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंस अ वेरी यंग एज। मैं दिल्ली में 3rd ग्रेड में आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, और मैं एक वेकेशन के लिए आई थी दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद मुझे दिल्ली से काइंड ऑफ प्यार सा हो गया था। आई लव द प्लेस, आई लव द ट्रीज एंड द रोड्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग अबाउट दिल्ली वाज सो ब्यूटीफुल, सो रिच हेरिटेज, you can see from India Gate, राष्ट्रपति भवन, and everything in Delhi was so amazing. तो जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तब मैंने फील करा आई लव दिल्ली। तो वापस when I went back to my home state, it's not like I don't like my home state, but I fell in love with Delhi. But I used to keep thinking अरे दिल्ली वाले रोड्स कितने अच्छे हैं, काश यहाँ पे भी वैसे ही रोड्स होते, काश ये ऐसे होता, ऐसे सोच के बस एक हैप्पी फीलिंग जनरेट हो रहा था। एंड इट हैपेंड कि कुछ ही सालों में मैं दिल्ली में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई, एंड आई हैव बीन इन दिल्ली एवर सिंस देन। सो माय होम इज इन दिल्ली, माय स्कूलिंग हैज बीन इन दिल्ली, कॉलेज हैज बीन इन दिल्ली। कॉलेज में भी when I watched some movies, I saw those red brick walls and I imagined a kind of college life that I would have, and I had exactly that college life that I had imagined in my mind. So it is very very powerful. आप एक बच्चे को देख सकते हो, एक बच्चा जो होता है वो सबसे ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उसका जो डिमांड है वो इतना जिद्दी हो जाता है, जैसे उसको कुछ चाहिए और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये चाहिए, फिर वो ये नहीं सोच रहा होता है कि उसके पेरेंट्स उसको कैसे ला के देंगे, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, कैसे आएगा, हाउ विल दैट थिंग कम टू दैट चाइल्ड। ही डजंट थिंक ऑफ दैट, ही जस्ट थिंक्स कि उसको चाहिए एंड ही बिकम्स वेरी जिद्दी अबाउट इट। ही एंड्स अप मैनिफेस्टिंग इट। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको पता नहीं होता है उस चीज को, like he's practicing that. But as we grow up, we are taught not to be ziddhi, not to be very stubborn about what you want, and we think more logically. तो जब आप लॉजिक अप्लाई करते हो कि अरे ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस हैपन, ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटीज हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। हमें ये पॉसिबिलिटी क्या क्या है उसके लिए ओपन करना होता है माइंड। For law of attraction to be practiced, the universe is going to bring you those circumstances. जब यूनिवर्स आपको सब कुछ लाके देने वाला है जो भी आपको चाहिए, और यूनिवर्स में अबंडेंस है, आपको कुछ टाइम के लिए मानना होगा कि आपका जो ड्रीम है वो पॉसिबल है। आपको ये बिलीव करना होगा कि whatever you want is possible, can happen, and the universe has the power to create that for you. जैसे आपको क्रिएट किया गया है, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट हुआ है, जैसे इस वर्ल्ड में सब कुछ क्रिएट हुआ है, आपके विशेस भी आप तक पहुंच सकते हैं, पर आपको विश्वास करना होगा। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। द मोमेंट यू से कि नहीं यार नहीं हो सकता, मेरे पास कैसे आएगा, हाउ विल दिस हैपन, द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट स्मॉल पार्ट ऑफ लॉजिक इन योर ब्रेन इनटू दैट, you start doubting the process and it's almost like cancelling an order that you've given to the universe. तो अगर आपको कुछ चाहिए, you have to wait for it. It's not like ऐसे आ जाएगा कि आपने चुटकी बजाया और आपके सामने रेडी।
जस्ट लाइक आपको अगर खाना बनाना होता है तो खाने के लिए भी आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। जैसे आप खुद बना रहे हो तो आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट डिपेंडिंग ऑन द डिश उतना टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाने का ऑर्डर करते हो तो खाने का ऑर्डर उसमें भी टाइम लगता है। बेसिकली आपको टाइम देना पड़ता है उसको, आप कैंसिल नहीं कर देते ऑर्डर को। तो सिमिलरली आप जब यूनिवर्स में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ चाहिए होता है आपको, यू हैव टू हैव विश्वास उसमें कि yes it will happen, it's taking a little time but it will happen. So that's very important. So in this video I'm going to be showing you about the law of attraction का vision board, जो things that you want. So I've got these pictures, you can see ये इन pictures को I've got, and these are some things that I would like to see as visuals in my room and think some things that I want to manifest. So इसको क्या करूँगी मैं, छोटे छोटे पीसेस में उसका I'll cut them and I'll make a vision board. So make a vision board with me and I'll show you how I do it. So it's very simple. For example, in this I've got some quotations like you'll make it, you're golden, you're rare, adore yourself, see good in all things, more self-love, never forget your own worth, you are capable of amazing things, follow the dream, radiate positivity, love God, choose people who choose you। ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट्स वाले मैंने कुछ कोटेशंस निकाला है। तो these things जब आपको कुछ पॉजिटिव आपके माइंड में आता है ना, लाइक इट चेंजेस योर वाइब्रेशन। तो अगर आप ऐसे फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो और आपको कुछ अच्छा सा कोटेशन दिखता है तो इट काइंड ऑफ इंक्रीजेज योर वाइब्रेशंस एंड योर एनर्जी, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो एक छोटा सा मैंने जैसे आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ माय विजन बोर्ड, वैसे अब ज़्यादा नहीं दिखा रही क्योंकि पहले यू शुड नॉट शो इट टिल यू अचीव योर थिंग, इट्स सपोज टू बी केप्ट टू योर सेल्फ। आप अपने रूम में लगाएं और इसको पूरे वर्ल्ड को जाके ना बताएं, तो इट्स बेटर दैट वे। बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू सो दैट यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, एंड सिंस वी आर फ्रेंड्स एंड if you like to believe in good things, positive things, if you want to manifest things, if you like organization from kitchen to fashion and workouts and living a good magical life and creating your reality, creating beautiful spaces, then follow my channel. My name is Nairita and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram, Nairita Joyce, love_Nairita Joyce on Instagram ID. You please press that bell icon and subscribe to my channel for more positive videos. And now I'm going to be making a vision board. So you can see these are some creative visuals that I have, and I'm going to be putting it up. And I will make a vision board. So you can make a vision board on a board, like a proper board, or you can also make it on a chart paper, however you please. You can make it a digital vision board also. आपने Pinterest से पिक्चर्स लिए, उसको एक बोर्ड में बनाया और डेली उसको देखा, उसको बिलीव किया और उस इमोशन को महसूस करा। So it's all about how you feel. The feeling is the most important part. So I'm going to be like thinking on chart paper. So just to give you an idea, you can make a vision board that looks like this. This is just to give you an example. आप ऐसे बना सकते हो। इसमें जैसे क्या क्या आपको चाहिए उन पिक्चरों को डाला और एक विजन बोर्ड बनाया। ये प्योरली एग्जाम्पल के लिए है, ये मेरा विजन बोर्ड नहीं है। तो आपको मतलब जो भी चाहिए लाइफ में, जैसे एक अच्छा बॉडी फिगर चाहिए, कहीं पे घूमने जाना है वो प्लेस, कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कोई फीलिंग्स जो है वो हैप्पी आना चाहिए आपको बेसिकली। तो ऐसे आप विजन बोर्ड बना सकते हैं।